Bismillahirrahmanirrahim. Subject Biology, Class 9, Chapter number 5, and the topic name is Significance of Meiosis. Significance means importance. Meiosis की क्या importance है लाइफ में? लास्ट टाइम हमने Meiosis 1 and Meiosis 2 को कंप्लीट किया था. अब हम नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं. That is significance of Meiosis. The significance of Meiosis was described by August Weismann in 1890. And he explained that he pointed out that meiosis was necessary not only to maintain the number of chromosomes in the next generation but also produce variation in next generation. We have observed that in meiosis 1, in prophase 1, crossing over occur in homologous chromosome in non-sister chromatids. हमने देखा था कि exchange of segments हुआ था, क्याज़माटा फॉर्मेशन हुई थी और क्रॉसिंग ओवर हुई थी. क्रॉसिंग ओवर किस चीज़ का सबब बनती है? क्रॉसिंग ओवर वेरिएशन का सबब बनती है. वेरिएशन मतलब जेनेटिक जीन्स में तब्दीली आ जाना. मीन्स जो नए डॉटर सेल्स हैं उनमें जेनेटिक वेरिएशन चेंज होता है अपने पेरेंट्स से के जेनेटिक मैटर से. अब हम देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मियोसिस की सिग्निफिकेंस को की रिस्पॉन्सिबल हैं. नंबर 1, maintenance of chromosome number in next generation. If you observe in human diploid, humans में अगर हम देखें diploid gamete, diploid means मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, diploid means 2n number of chromosome. When diploid gamete mother cells or germline cells undergo meiosis, it produce haploid gamete. Diploid gamete change into haploid gamete during meiosis by और then ये जो haploid gametes हैं, haploid gametes means male gametes and female gametes. Okay, male and female gametes when unite it produce zygote and the zygote undergoes repeated mitosis. zygote जो है वो आगे जाके next उसमें repeated जो है वो mitosis के process होते हैं और वो फिर change हो जाता है new diploid में. Means diploid gamete change into haploid gametes and haploid gametes when unite together to form a zygote. 2n number and 2n number of zygote change into a new embryo, that is new diploid gamete. 2n number के पास होते हैं. अगर हम प्लांट्स में ऑब्जर्व करें तो प्लांट्स में जो है उनकी लाइफ साइकिल में एक नई चीज जो है वो आपको देखने को मिलेगी. उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स वन जनरेशन चेंज इनटू अदर सेकंड जनरेशन अगेन चेंज इनटू फर्स्ट जनरेशन. मीन्स एक साइक्लिक प्रोसेस होता है. लेट्स सी इन प्लांट्स टू टाइप्स ऑफ जनरेशन अकर, स्पोरोफाइट जनरेशन एंड द गैमेटोफाइट जनरेशन. स्पोरोफाइट जनरेशन इज अ डिप्लॉयड जनरेशन. 2n नंबर, ये देखिए आपको 2n नंबर नजर आ रहा है. इट इज अ डिप्लॉयड जनरेशन. इट इज an independent generation. Its main key does not depend on gametophyte. Sporophyte generation is a diploid generation. 2n number. In sporophyte generation, meiosis occur and it produce spores. Sporophyte से spores, यानी कि नेम से पता चला है sporophyte generation क्या प्रोड्यूस करती है? हमेशा spores बनाती है. 2n जब meiosis occur हुई तो 2n change into 1n. spore जो है वो 1n आ गया, हमारे पास haploid spores बनेंगे. अब क्या होगा? स्पोर जो है उनमें माइटोसिस डिवीजन होगी और माइटोसिस डिवीजन से वो नेक्स्ट जनरेशन जो सेकंड जनरेशन है हमारे पास प्लांट्स की लाइफ में, दैट इज गैमेटोफाइट जनरेशन जो है वो हासिल हो जाएगी 1n. जाहिर सी बात है 1n ही रहेगा ना. अब जो गैमेटोफाइट जनरेशन है ये आगे जाके प्रोड्यूस करेंगे गैमेट्स. किस टाइप के गैमेट्स होंगे? यूनोइड पेरिकल ऑफ फीमेल गैमेट्स एंड द मेल गैमेट्स 1n1. अब ये जो फीमेल गैमेट्स एंड द मेल गैमेट्स हैं ये आपस में यूनाइट होंगे, ठीक है, और ये क्या बना देंगे? जाइगोट बना देंगे. क्या बना देंगे बच्चों? जाइगोट बनाएंगे. और जाइगोट क्या होगा? जैसे कहते हैं 1n यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म अ 2n. इन जाइगोट माइटोसिस डिवीजन occur and then produce again sporophyte generation, and this is a cyclic process. The sporophyte generation change into gametophyte and gametophyte generation change into sporophyte. This type of generation is called alternation of generation. The second point is significance of meiosis is production of variation in next generation. How variation occur in next generation? We observe in meiosis 1, prophase 1, crossing over occur. वही सारा process है. Let's see. Chromosomes pairs of each parents undergo crossing over. When crossing over occur, genetic variation occur in daughter cells. When gametes, जब gametes fuse होंगे
अब जो जायगोट बना है उसका जेनेटिक मेकअप क्या है? इट्स जेनेटिक मेकअप डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स बिकॉज क्रॉसिंग ओवर होने से उनके सेगमेंट्स चेंज हो गए। इट्स मींस मियोसिस अलाउज अ स्पीशीज, मियोसिस इस बात की श्योरिटी देती है स्पीशीज को कि वो क्या करे, उसके जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें वेरिएशन आती है। वेरिएशन का मतलब होता है चेंज आ जाना, तब्दीली आ जाना उनकी जेनेटिक मेकअप में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आ जाना। अब जो वेरिएशन है वो टू टाइप्स की होती है, बेनिफिशियल एंड नॉन बेनिफिशियल। बेनिफिशियल जनरेशन, बेनिफिशियल वेरिएशन मींस जो हमारे फायदे की वेरिएशन है, जो तब्दीलियां हैं किसी भी जानदार के फायदे के लिए, वो उस ऑर्गेनिज्म को हेल्प आउट करती हैं कि वो अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में होने वाली चेंजेस को अडॉप्ट कर सके। ठीक है, अब हमने लास्ट टाइम माइटोसिस में भी देखा था कि कुछ एरर्स हो गए थे अनकंट्रोल सेल डिवीजन से। इसी तरह मियोसिस की भी प्रोसेस में समटाइम एरर्स हो जाते हैं, वो भी हम देखते हैं। पहले हम एक डेफिनेशन को क्लियर करने जा रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, डिसजंक्शन। ये अक्सर बोर्ड के क्वेश्चन में आ जाता है 2 मार्क्स का। व्हाट इज डिसजंक्शन? डिसजंक्शन ड्यूरिंग एनाफेज 1, एनाफेज 1 में क्या होता है? क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, हमने पीछे ऑब्जर्व किया था। जब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं, और एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, ये हमें याद है। एनाफेज 1 में ओनली साइड क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ चल जाएंगे। जब एनाफेज 2 आता है तो सिस्टर क्रोमोसोम आपस में जो जुड़े होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसजंक्शन। ये नॉर्मल प्रोसेस है मियोसिस का, ये मियोसिस में होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो एरर आ जाता है मियोसिस में। अब वो एरर क्या है, उसको हम क्या नाम देते हैं? इट इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन। व्हाट हैपन इन नॉन डिसजंक्शन? समटाइम्स द सेपरेशन, ये जो ऊपर सेपरेशन हुई है एनाफेज 1 में और एनाफेज 2 में क्रोमोसोम्स की सेपरेशन हुई थी ना सिस्टर क्रोमोसोम की, वो नॉर्मल नहीं होती, वो सेपरेट नहीं होते, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है? दिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। इसके नतीजे में बनने वाले गैमेट्स ऐसे हासिल होते हैं व्हिच हैव आइदर मोर और लेस देन द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। होता क्या है, उनमें जो गैमेट्स में, एक गैमेट में ज़्यादा क्रोमोसोम आ जाते हैं और एक गैमेट में कम क्रोमोसोम आ जाते हैं, जो कि नॉर्मल नहीं होते, एबनॉर्मल होते हैं। इफ सच एबनॉर्मल गैमेट्स, अगर वो कोई जो एबनॉर्मल गैमेट है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम या तो कम आया है या ज़्यादा आया है, वो ऐसे गैमेट के साथ फ्यूज हो जाए जो कि नॉर्मल गैमेट है। जाहिर सी बात है, एबनॉर्मल गैमेट जब नॉर्मल गैमेट के साथ फ्यूज होगा तो बनने वाला जायगोट नॉर्मल तो नहीं बनेगा, वो एबनॉर्मल बनेगा, बिकॉज इट रिजल्ट्स इन एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन नेक्स्ट जनरेशन। वो कैसे होगा? फॉर एग्जांपल, या तो जो बनने वाला गैमेट्स है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज़्यादा होने से टोटल जो जायगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो कितने हो जाएंगे? 47 हो जाएंगे, जो कि एबनॉर्मल शो करता है जायगोट को। इसी तरह अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम है किसी गैमेट में तो बनने वाला जो जायगोट है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम टोटल कितने आएंगे? 45। इट इज़ आल्सो एबनॉर्मल। तो नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होने चाहिए किसी भी ह्यूमन बीइंग के जायगोट में? इट इज़ 46। दिस वन इज अ नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कब होंगे? जब डिसजंक्शन होती है। एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कब होंगे? जब नॉन डिसजंक्शन हो, मींस सेपरेशन ना हो मुकम्मल तौर पे। दिस प्रोसेस इज कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।